खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में फौज ने एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। सुबह सवेरे पाकिस्तानी पोस्ट की जानिब से मुश्तबा नकलो हरकत देखने के बाद फोर्सेज ने कार्रवाई की और खारदार तारों को काट कर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया। भारी असलहे से लैस मिलिटेंट पाकिस्तानी पोस्ट की जानिब से आ रहे थे और इससे मुल्क में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में पाकिस्तानी रोल का पता चलता है। मिलिटेंटों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल, 12 मैगजीन, 1 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, रेडियो सेट्स, खाने पीने की अशिया और तकरीबन 1.5 लाख रुपए हिंदुस्तानी व पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। Early hours of this morning, our troops along the line of control in Nogam sector detected suspicious movement originating from Pakistani posts in the area. Appropriate response by troops on ground was taken to eliminate the 2 terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. The heavily armed terrorists, dressed in combat fatigues, had taken the route through Pakistani posts in the area opposite, which clearly indicates Pakistan complicity in abetment to fomenting terror in India. Action of own troops was precise and timely, thereby ensuring a clean operation. Recoveries from the slain terrorists, which we'll be sharing separately with you, includes 2 AK assault rifles with 12 filled magazines, a pistol, magazines, some grenades. In addition to the food and medicines, we also have recovered about 1.5 lakhs in Indian and Pakistani currency. The search operations are still underway in the area to sanitize. The infiltration attempt follows similar attempts made by Pakistan in Kupwara and Rajouri sectors in recent past and needs to be seen in the backdrop of various inputs about increased presence of terrorists in the launch pad across the line of control, fully facilitated and supported by Pakistan Army. मेजर जनरल वीरेंद्र ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक पीओके में एलओसी के लॉन्च पैड पर 250 से 300 तरबियत याफ्ता मिलिटेंट मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिश में है, ताहम इनकी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए फौज पूरी तरह से तैयार है। जनरल वीरेंद्र ने मजीद कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को उकसाने में नाकाम हो रहा है। I would like to put a figure to that. The launch pads are fully occupied, and if we had to hazard a guess, it could be anything between 250 to 300 terrorists presently occupying the launch pads opposite. See, what do I foresee for the summer if we have to forecast? See, Pakistan has been failing in its attempt to instigate the people of Kashmir. The people have by and large rejected the narrative of Pakistan. And ever since we had the momentous decision of August last year, they have been trying very hard. So, and they also know the season is coming to an end very soon. I mean, just 3 or 4 months is what they have. So they shall try their best to push in the terrorists. And as I said, Indian Army is ready. And पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता रात सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में बाबाखुरी और कलेसिया बेल को निशाना बनाकर छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी की। रात 8 बजे से 12 बजे तक गोलाबारी का यह सिलसिला जारी रहा। फौज ने भी पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस गोलाबारी की वजह से एलओसी के करीब रहने वाले अफराद में खौफ और हरास देखा गया। लोगों ने इलाके में बंकरों की तामीर की अपील की। मैं बच्चों को घर भेज दिया, अंदर बैठा दिया, कोई जहां मोर्चारियां जो माल मवेशी था उसको भी अंदर कर दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने पुलवामा का तफसीली दौरा किया। एलजी ने पुलवामा में किसान पखवाड़े के तहत मुनक़िदा मेले का इफ्तिताह किया। एलजी ने महकमे ज़राअत के अफसरान पर जोर दिया कि वो सभी किसानों को केसीसी ज़ुमरे में लाएं। एलजी ने किसानों से कहा कि वो ज़राई पैदावार में जदीद तरीक़ेकार को बरूए कार लाएं। एलजी ने डीसी ऑफिस पुलवामा में पंचायती मेम्बरान और ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों के 18 अवामी वफूद से मुलाकात की। मुर्मू ने ज़िला पुलवामा में हो रहे तरक्याती कामों का भी एक मीटिंग के दौरान जायज़ा लिया। एलजी ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों को बुनियादी सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए काम करें। इन्होंने निजी सनती इदारों को सहूलियात मुहैया रखने पर भी जोर दिया। एलजी ने ज़िला पुलवामा में कोरोना से बचने के लिए किए गए इक़दामात का भी तफसीली जायज़ा लिया। जम्मू कश्मीर के एलजी
जीसी मुर्मू के पुलवामा दौरे के पेश नज़र आज कस्बा पुलवामा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कस्बा समेत जिले के मुख्तलिफ अहम शाहराह पर पुलिस और CRPF के खुसूसी नाके कायम किए गए थे। कस्बा पुलवामा में तमाम दाखिली रास्तों को सील किया गया था। पुलिस और CRPF की जानिब से DC ऑफिस की तरफ से किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं दी गई, सिर्फ खुसूसी पास वालों को ही इजाज़त दी गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से अमवात की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूटी में वायरस मुतासरा मजीद 7 अफराद की मौत हो गई। कश्मीर में 6 जबकि जम्मू में 1 की मौत हुई है। इनमें स्किम्स में 2 और CD अस्पताल में 1 और SMHS अस्पताल में 1 मरीज की मौत हुई। तरेगाम कुपवाड़ा के एक 43 साल मरीज की CD अस्पताल श्रीनगर में मौत हो गई। हैदरपुरा श्रीनगर के एक बुजुर्ग शख्स की भी आज कोरोना से मौत हो गई। SMHS अस्पताल में एक खातून की मौत हुई। इस बीच जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेज में रोजाना सैकड़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कश्मीर में आज अभी तक 122 नए मुस्बत केस सामने आए हैं। उधर जम्मू में आज मजीद 65 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट श्रीनगर और जम्मू कश्मीर बैंक में मुस्बत केसेस सामने आने के बाद आज सुबह श्रीनगर जिला कोर्ट में 3 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इसके चलते कोर्ट को आज बंद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 2 जज और एक खातून वकील के टेस्ट मुस्बत आए हैं। कोर्ट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सैनिटाइजेशन का काम अंजाम दिया गया। Pending in PNTNT, before the honorable court over there. So I wanted to see my concerned advocate over there. So sanitation is going on over there. So let us hope for the Monday now. Tomorrow it is Sunday. Let's hope for the best. This is very nice thing that sanitization is going on over there. It's in the public interest. It's for their benefit. हमारे केसेस लगे थे, बहुत सारे केसेस आज लगे थे, बहुत सारे डिफरेंट कोर्ट्स में लगे थे। तो चूंकि सुबह ही आपको हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि अथॉरिटीज़ ने जो है कोर्ट जो है आज के लिए बंद करा है, तो इसकी वजह से तो इट्स एंड आई मस्ट टेल वन एस्पेक्ट इन द सेम कि दैट दिस इज रियली अ ग्रेट स्टेप विच हैज़ बीन टेकन बाय द अथॉरिटीज़, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ विद रिगार्ड टू द सेम, बिकॉज दिस इज फॉर आवर सेफ्टी। चंद रोज कबल हाई कोर्ट में कुछ अफराद के पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया था और आज सुबह श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 जज साहबान और एक वकील के पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट को आज बंद कर दिया गया है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में हर दिन गुजरने के साथ नए केसेस सामने आ रहे हैं और जो तशवीश का बायस बन रहा है और वहीं ये भी कयास किया जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में श्रीनगर के साथ साथ 1-2 अजला में बंदिशें फिर से नाफिज हो सकती है। हालांकि इसका अभी सरकारी तौर से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी ओर से यही लोगों को तलकीन की जा रही है कि जो प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर होगी यहाँ पे फिर से बंदिशें नाफिज करने के लिए। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कुपवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके चलते इंतजामिया ने जिले में 3 रोज तक लॉकडाउन का फैसला किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज बाज़ाब्ता तौर पर 12 से 14 जुलाई तक लॉकडाउन की हिदायत जारी की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नज़ीर अहमद लून ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानें और आम लोगों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। तरेगाम के एक मरीज की CD अस्पताल श्रीनगर में मौत हो गई। अब तक कुपवाड़ा में मरने वालों की तादाद 9 हो गई है। काफ़ी बढ़ रहे हैं और जब हमने ये हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ बात की इसमें, तो उनका कहना है ये कि लोग प्रिकॉशंस बहुत कम ले रहे हैं। हालांकि बाज़ारों में आजकल हमने रोस्टर लेवल पे हम रोस्टर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ दुकानें खुली रहती हैं और दूसरी बंद रहती हैं, लेकिन तब भी लोगों का काफ़ी रश रहता है बाज़ारों में और लोग बहुत कम प्रिकॉशन लेते हैं, मास्क बहुत कम लेते हैं। हालांकि उस पर हमने जुर्माना भी किया है और ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए जो जुर्माना है वो भी रिकवर हुआ है, लेकिन तब भी लोग इसको इतना सीरियसली नहीं दे रहे हैं। तो मजबूरन ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि हम 3 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं, ताकि हम देखेंगे उसका असर क्या होता है, आगे जो एक्टिविटीज है उस पर क्या होगा। हालांकि उसमें बहुत सारे हमारे तकरीबन 300 के करीब रिकवरीज भी हुई हैं, लेकिन रिकवरीज उस तरह से नहीं हो रहे हैं जिस तरह से जो नए केसेस सामने आ रहे हैं। राजौरी में कोरोना केसों में अचानक इजाफे के बाद जिले के कई मुकामात पर दोबारा लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े अस्पतालों में OPD खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। राजौरी में जुमे के रोज कोरोना के 51 केस सामने आए।
डीसी राजौरी नज़ीर अहमद शेख ने कहा कि वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए दोबारा लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। पंजकोट के तहसीलदार और दीगर स्टाफ मेंबर को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। हाल ही में एक कोरोना मुतासरा शख्स ने तहसील दफ्तर का दौरा किया था। जीएमसी से वाबस्ता एक अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड के स्टाफ को भी होम क्वारंटीन कर दिया गया है। 1000 के लगभग हमने सैंपल्स किए, उसमें 12,000 जो है नेगेटिव हैं, 200 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए और लगभग 1500 हमारी जो हैं अभी भी रिपोर्ट्स जो है अवेटेड हैं। और हमारे से 5 जो हैं रेड जोन हैं। हमारा जो मेन मार्केट जो ओल्ड सिटी राजौरी है और वो पिछले 7 दिन से बंद है। पॉजिटिव केस है वो मार्केट में आया था, मार्केट में काफ़ी सारी परचेजिंग उसने की थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला डॉक्टर जी नित्तू की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामे के तहत पटन, सिंहपुरा, हैदरबेग, पलहालन और दूसरे मुकामात पर बाजारों और दुकानों में कोरोना वायरस से बचने की गरज से जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया गया। सिंहपुरा में तहसीलदार सिंहपुरा निसार अहमद और बीडीओ सिंहपुरा इस मुहिम की निगरानी कर रहे थे। पटन में भी म्यूनसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर मुहिम की निगरानी कर रहे थे। दुकानदारों ने दवाइयों के छिड़काव पर जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये मुहिम 2 दिनों तक जारी रहेगी। इस दौरान तमाम दुकानें और दीगर तिजारती इदारे बंद रहेंगे। बारामूला जनाब जीएम जेतू साहब के हुक्म के मुताबिक फेमिगेशन हम करवा रहे हैं। इन 2 दिनों में दुकानें बंद रहेंगी और जो भी इंटायर एरिया है और जो मार्केट प्लेसेस हैं इनमें हम पूरी तरह से फेमिगेशन करवाएंगे। जितने भी लोग हैं हमारे उन सब से गुजारिश करना चाहूँगा कि गैर ज़रूरी जो है तौर पे घर से ना निकलें और जिसको काम होगा काम के सिलसिले में जब भी निकले तो मास्क लगा के निकले और अपना जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने कश्मीर में बागात और पार्कों को खोलने के फैसले का दिफा किया। इन्होंने लोगों से अपील की है कि वो खुद को और दूसरों को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर और गाइडलाइन की पासदारी करें। डिविजनल कमिश्नर ने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। हाल ही में पार्क्स और गार्डन्स खोलने का था, क्या आपको नहीं लगता कि ये टाला जा सकता था? जब ये फैसला होने के पहले दिन जो है, इससे पहले आप देखोगे तो दल का जो किनारे वाला रोड है जिसको हम बुलेवार्ड बोलते हैं, उस पर बहुत सारे लोग इवनिंग को रहते थे, खास करके संडे को तो इवन जाम टाइप का लगने लगा था। ठीक है, आज जो है आप देखोगे तो वो पार्क में चले गए। ठीक है, आज जो है वो रोड पर रहने के बजाय पार्क पर चले गए। फर्क जो है वही हुआ ऐसा कुछ। लेकिन सर आपने भी कहा हमने भी देखा फॉलो नहीं होते, नहीं हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है। इवन मैं आपके न्यूज़ 18 के ज़रिए से भी कश्मीर के सभी आवाम को फिर से अपील करना चाहूँगा कि आपको सबसे प्यारी चीज़ है आपकी सेहत और आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स है, बच्चे हैं, वो सबसे आपके प्यारी चीज़ है। किसी की भी प्यारी चीज़ रहती है। एटलीस्ट उनके लिए, उनकी खातर, उनकी सेहत के लिए आप अगर जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते वक्त मास्क पहन करके बाहर निकले और जब तक वापस नहीं आते हैं तब तक मास्क ना उतारे। जम्मू शहर में अनलॉक शुरू होते ही बाजार तो खुल गए पर ग्राहकों का इंतजार करके दुकानदार खाली हाथ ही घर लौटने पर मजबूर हैं। पेट्रोल डीजल महंगा और फिर लोकल ट्रांसपोर्ट ना चलना भी एक अहम वजह है कि लोग ज़रूरी अशिया खरीदने के लिए भी घरों से नहीं निकल रहे। पेश है कोमल सी की रिपोर्ट। हर साल इन दिनों मंदिरों के शहर जम्मू में रौनक देखने को मिलती थी। गर्मी की छुट्टियां और मुल्क भर से यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। साल में सिर्फ जून और जुलाई के महीने में दुकानदार बैरूनी सयाहों का इंतजार करते थे, लेकिन इस मर्तबा कोरोना की वबा ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि बैरूनी सयाह तो छोड़िए, मकामी गाहक भी खरीदारी करने के लिए घरों से नहीं निकल रहे हैं। एक दुकानदार अपना खाली वक्त एक कॉपी में राम का नाम लिखकर गुजार रहे हैं। जब दुकानदार से बात की गई तो अपनी हालत बयान करते हुए उनके आंसू छलक पड़े। हम तो आते हैं सुबह तो शाम को ऐसे ही चले जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ राम राम लिख रहे हैं। चलो
टाइम पास करने के लिए, टूरिस्ट तो है नहीं। तो बाकी सारी मार्केट डल है, सभी ड्राई फ्रूट वाले, शाल साड़ी वाले सभी ऐसे ही बेकार ही बैठे हैं। जब तक के ट्रेनें या टूरिस्ट बाहर से नहीं आएगा तब तक तो यहाँ काम नहीं होगा। अब हरी मार्केट ले लीजिए, गुम्बद बाज़ार ले लीजिए, उनकी तो ऑलमोस्ट सारी शॉप्स ही बंद पड़ी हैं। अगर ये रुना बाज़ार कुछ खुला है तो थोड़ा सा खुला हुआ है, तो बहुत ही मुश्किल है, अभी तो कस्टमर है ही नहीं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से भी गाड़ियां सड़कों पर कम ही नजर आ रही हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट न होने से भी लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। आम लोग हुकूमत पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कोविड की मार है, काम नहीं है, फिर भी उसके बावजूद गवर्नमेंट हम पे लोड डाले जा रही है। पेट्रोल डीजल के रेट हाई और हाई कर जा रही है, तो हर चीज़ पे कोरोना टैक्स भी आ रहा है। अब गरीब क्या करेगा? हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि गरीबों की सुनी जाए, ताकि गरीब भी आगे चल सके, ना कि ये सिर्फ शाहूकारों की और व्यापारियों की सरकार बन के ना रहे, गरीबों की आवाज़ बन के आए। कोरोना की स्थिति है इस समय, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और इस सिचुएशन में आप डीजल का रेट पेट्रोल से ऊपर और पेट्रोल का रेट आसमान छू रहा है। लगातार 22 दिन हो गए पेट्रोल का रेट बढ़ते। तो मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ, हमने आपको मैंडेट देके इतनी ऊपर पहुँचाया, कुछ तो आम जनता के बारे में सोचिए, वो पैसा कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। हर शोबे के कारोबारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। तामराती सामान बेचने वाले हों या कपड़े के ताजर या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवर, सभी छोटे और बड़े ताजरों पर जैसे कोरोना टैक्स लग गया है। इन लोगों का सवाल है कि वज़ीर आज़म ने सबके लिए सोचा, लेकिन ताजरों के लिए क्या सोचा? हम व्यापारियों का कोई ख्याल ध्यान नहीं रखा, ना इस पे कोई पैकेज दिया। कोई आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने भी रिक्वेस्ट की थी, कोई व्यापारियों का भी सोचो, व्यापारियों को भी कोई पैकेज दो, मगर कोई उसका पैकेज का कोई ऐलान नहीं हुआ। हमने कहा था बिजली का बिल वो 6 महीने का माफ़ करो, होटलों की जो वाटर फीसिस है उसको माफ़ करो, जो बैंक की लिमिट्स हैं उसका इंटरेस्ट माफ़ करो, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। 80% फ़र्क पड़ गया जी, बिल्कुल ख़त्म है इस टाइम। सारे ड्राइवर बेले बैठे हुए हैं, काम है नहीं, सुबह से शाम तक इधर ही बैठे रहते हैं ऐसे ही, ना कोई सेल है ना कुछ है। रजिस्ट्रियाँ बंद है गवर्नमेंट की, कोई प्लाट नहीं बिक रहा, कोई नया काम नहीं लगा रहा, ठेकेदारों के काम बंद हो गए हैं, कोई पेमेंट नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं, सब बंद। कोरोना वायरस की मार हर एक शख्स पर पड़ी है। दुकानदार ग्राहक का इंतजार कर रहा है, ग्राहक पैसेंजर गाड़ी चलने का इंतजार कर रहा है, और पैसेंजर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर गाड़ी ही नहीं चला रहा है। अब ऐसे सब पर देखना होगा कि सरकार किस तरह के कड़े कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी करने वाले वॉलंटियर्स और लंगर का इंतजाम करने वाले अफराद का ख्याल है कि इस साल यात्रा को मनसूख किया जाना चाहिए। इनका कहना है कि हालांकि हुकूमत यात्रा की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान करने से पसोपेश कर रही है, ताहम गैर सरकारी तौर पर जुलाई के आखिरी हफ्ते में यात्रा शुरू करने की बात कही जा रही है। इनका कहना है कि कोरोना से पैदाशुदा हालात को देखते हुए बेहतर रहेगा कि यात्रा को मनसूख ही कर दिया जाए। यात्रा जो डिक्लेयर नहीं करी है उनको जल्द से जल्द अगर यात्रा करवानी तो यात्रा डिक्लेयर करें, अन्यथा वो इस यात्रा को कैंसिल करें। अगर यात्रा वो क्या नाम है नहीं करवाने में सफल हो पा रहे और उसमें क्या नाम है कोई भी संशय लेके चल रहे हैं, उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है कि हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो उस यात्रा को ना कराएं। यहाँ की लोकल जो आवाम है इनकी जान जोखिम में न डालें, क्योंकि जो भी ये कोरोना टेस्ट की गाइडलाइन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। यात्री आने हैं, 13 दिन की यात्रा शो कर रहे हैं, सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है 13 दिन में ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारे को भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, ना कोई गाइडलाइन की जानकारी मिल रही है। सैन बोर्ड को यही चाहिए कि यात्रा की तारीख तय करे, क्योंकि कोई यात्री परेशान ना हो, और नहीं करानी तो साफ मना कर दे, यात्रा नहीं करानी। मेरा मानना है यात्रा कराकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय कम बचा है यात्रा का, क्योंकि रक्षाबंधन पे जैसे छड़ी जाती है, यात्रा का लास्ट दिन होता है, तो उस हिसाब से यात्रा कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इस छोटे समय में अगर यात्रा कराते हैं तो इससे जान माल को हानि हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 का टेस्ट में जहाँ तक टाइम लगता है, लोग आग इसमें कुछ फर्जी काम करेंगे, कोई बीमार होगा वो आएगा, यहाँ पे भीड़ लगाएंगे, लोग आग बिना उसके आएंगे। इसलिए मैं भारत सरकार से ऐसी ही व्यवस्था की उम्मीद करता हूँ कि जिससे कश्मीर के लोगों के और पूरे भारत के लोगों की जान की सुरक्षा हो सके इस बीमारी में, क्योंकि जान है तो जान है। हम अगले साल आएंगे, दोबारा बाबा के दर्शन करने आएंगे, तो इस भ्रम की स्थिति को खत्म करें। महकमा तालीम में बतौर कुक
काम कर रही कुछ ख्वातीन ने पुलवामा में अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली इन ख्वातीन ने कहा कि वो काफ़ी कम उजरत पर काम कर रही है। इनका कहना है कि एलजी के पुलवामा दौरे के मौके पर इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने अपने मुतालबात रखने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें एलजी से मिलने की इजाज़त नहीं दी। ये ख्वातीन क्वारंटीन सेंटरों में भी खाना बना रही हैं। ये सभी ख्वातीन कई वर्षों से कम उजरत पर काम कर रही हैं। अम ब्रो कर स्कूलस मज बत रनान वन लगे क्वारंटाइन ड्यूटी अस गई 4 रेत खसान ड्यूटी प्राइवेट गाड़ियों मज पे खसन रात दोहस ड्यूटी अस मुतालबह सोन अस गम तनख्वाह तह हुर्राव मुसद्दिक कर अस बना पन्निस गांवस मज रोजन तस त्रो पन शुर वाच अस त्रो घर बार त्रो पन ड्यूटी अंजाम दिवान अस आए वन गवर्नर साहबस मुतालबह वन और ना दितुक ब्रोट पकन कह वन तुहदे जरिए यछान। स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने पुलवामा में अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। SFC डिवीजन ऑफिस पुलवामा में मुलाजमीन का धरना दिन भर जारी रहा। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुनाफा बख्श कॉरपोरेशन को कंपनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके बाद कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। मुलाजमीन ने इस हवाले से LG से मुदाखलत की अपील की। एहतजाजियों ने कहा कि अगरचे सरकार ने इनके मुतालबात की तरफ तवज्जो नहीं दी तो आने वाले दिनों में वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। 2500 मुलाजमीन 3 माह के तनख्वाह के लिए तड़प रहे हैं। अगरचे बारहा हमने सरकार की नोटिस में आवाज पहुंचाई मगर हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है और हमारे मुलाजमीन इस वक्त भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। तनख्वाह होने के बावजूद हमारे मुलाजिम दूर दराज जंगलों में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और सरकार के लिए काम कर रहे हैं। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस मामले में जाती मुदाखलत करें। गुलमर्ग के दामन में रिंगावाली मुकाम कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। मुकामी लोग इस इलाके को सियाहती नक्शे पर लाने के ख्वाह हैं। पेश है टंगमर से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात ऐसे हैं जहाँ सयाहत के वसी इम्कानात हैं, ताहम इन्हें अभी तक सयाहती नक्शे पर लाया नहीं गया है। शुरह आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग के दामन में वाक़े कुदरती खूबसूरती से मालामाल जगह रिंगावाली लोगों की नजरों से ओझल है। ये जगह दूसरे सयाहती मुकामात की तरह बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश करती है। गुलमर्ग, पहलगाम और दूसरे सयाहती मुकामात की तरह इस जगह को भी सयाहती नक्शे पर लाने की जरूरत है। ये मुकाम टनमर्ग से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये जगह दिखने में गुलमर्ग क्या है या पहलगाम सोनामर्ग क्या है उसके मुकाबले में ये 4 गुना उससे बढ़कर है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ मतलब टूरिस्ट स्पॉट दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मौसम गर्मा में यहाँ की सरसब्ज ठंडी वादियाँ और सरमा में सफेद बर्फपोश चोटियां सयाहों को यहाँ खींच कर ला सकती हैं, अपनी जानिब रागिब कर सकती हैं। रिंगावाली और उसके आसपास के इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले 30 वर्षों से इस जगह को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सतह पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ यकीन दहानी ही कराई जा रही है। लोगों के मुताबिक इस जगह को सयाहती नक्शे पर लाया जाए तो यहाँ बड़ी तादाद में मकामी लोगों को रोजगार के बेहतर मौके भी हासिल हो सकते हैं। अगर इसको सयाहती नक्शे पे लाया जाता यकीनन हमें भी रोजगार मिल जाती और इससे बेहतर एरिया बाकी ये इससे आसपास में है। धनवास है, पेजन है, अच्छा ये बाकी तोसे मदन से का कंडक्ट जाकर होता है, इससे भी बेहतर एरिया है। कई बार हमने मिनिस्टरों से गुजारिश की, उनके पास गए, वो भी यहाँ पर आए लेकिन हुआ कुछ नहीं। पिछले 30 साल से ये मुतालबा कर रहे हैं, अगर इधर टूरिस्ट होता बड़ा अच्छा रहता है। तो इस वक्त हालातों की वजह से क्या नहीं हुआ, क्या नहीं, गौर भी नहीं किया, या मिनिस्टरों ने भी देखा कहीं बार आकर, मगर बाद में इस पर तवज्जो कभी दिया नहीं। हुकूमत हर साल सयाहती सनत के फरोग के लिए एक बड़ी रकम मुख्तस करती है, साथ ही नए मुकामात की तलाश और तामीर और तरक्की में सरगर्दा रहती है। हुकूमत को चाहिए कि रिंगावाली जैसी खूबसूरत जगह को भी सयाहती नक्शे पर लाने के लिए इक़दामात करे।
गुलमर्ग के दामन में कुदरती खूबसूरती से लबरेज रिंगा वाली बद्रकूट जगह है। इस जगह को सयाहती नक्शे पे लाने की जरूरत है ताकि दुनिया भर के सयाह यहाँ भी आ सके और इस कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, रिंगा वाली बद्रकूट। लद्दाख के तुर्तुक वादी के एक वफ्द ने LG RK माथुर से मुलाकात की। वफ्द ने इन्हें दरपेश मसाइल से LG को वाकिफ करवाया। इस मौके पर LG ने इस वफ्द को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वादे रहे कि लेह जिले में वाक़ तुर्तुक वादी साल 1971 में हिंदुस्तान का हिस्सा बनी थी। यहाँ के लोगों का इल्ज़ाम है कि इनके इलाके को नज़रअंदाज किया गया है। आज हमारी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी MP जमियात सिंह नमगल साहब और हमारे LG साहब से काफ़ी तवक़्क़ात है, उम्मीद है। तो उसमें हमारे काफ़ी इश्यूज़ थे, गवर्नर साहब से डिस्कस हुए, जिसमें हमारे तुर्तुक-हनू रोड का मसला था। ALC एक्चुअल लैंड ऑफ कंट्रोल जो कि एक सर्टिफिकेट होता है जिसका रिजर्वेशन होता है 4%, तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और उसके बाद जो है हमारे डिग्री कॉलेज का मसला था। और भी कुछ इश्यूज़ थे जो कि गवर्नर साहब ने के सामने हमने रखे। उन्होंने पेशन हेयरिंग दी जी। हमारी जो एक्चुअल लैंड ऑफ कंट्रोल की सर्टिफिकेट है वो यहाँ जो डोमिसाइल लॉ बनने वाले हैं उसके बाद इसको फिर से रिइंस्टेट करने की उन्होंने बात की। उसका फ़ायदा हमें दिलाने की उन्होंने हमें उम्मीद दिलाई। साथ ही साथ जो हमारी डिग्री कॉलेज का मसला था, कॉलेज के लिए उन्होंने हमें इश्योर किया कि एक गर्ल कॉलेज वहाँ देंगे। साथ ही साथ तुर्तुक-हनू रोड का मसला था, उसको हमने ये बताया कि तुर्तुक-हनू रोड यहाँ तुर्तुक से श्रीनगर पहुँचने में 630-40 किलोमीटर हमें पड़ता है। वो बहुत ही शॉर्ट करता है अगर तुर्तुक-हनू रोड बनता है तो वहाँ से तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर शॉर्ट करता है। तो वो सारे हमने गवर्नर साहब को के कानून तक पहुँचाया तो उन्होंने हायर अथॉरिटी से बात करने का हमें उम्मीद दिलाया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हुसैन सामून ने गांधरबल जिले का दौरा किया। असगर सामून ने महकमे तालीम से जुड़े प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। इन्होंने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरबल की ज़ेर तामीर इमारत, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हडबुरा और गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल थेरू का भी दौरा किया। इस मौके पर DC गांधरबल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर भी मौजूद थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों के वक्त पर तकमील की हिदायत दी। इस दौरान असगर सामून ने जिस्मानी माजूर बच्चों में इमदादी सामान तकसीम किए। शोपिया केलर का एक गांव बरसों से तारीकी में था, लेकिन अब वहां रोशनी की राह हमार हो गई। अब गांव वालों के चेहरों पर इत्मीनान की कैफियत पाई जा रही है। गांव वालों के मुताबिक इससे पहले इन्होंने कई मरतबा महकमे बिजली से नुमाइंदगी की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा था। ताहम जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मसले को उजागर किया तो हुक्काम मुतारिक हुए और अब इन्हें बिजली की सहूलत मैसर हो रही है। महकमे बिजली के मुलाजमीन गाँव में खंभे नस्ब कर रहे हैं और दीगर ज़रूरी काम अंजाम दिया जा रहा है। गाँव वालों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, चैनल 18 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाई और हमारी जो मांगे थी, जो हमारी आवाज़ारी थी, ये आपने गवर्नमेंट तक पहुँचाई। लेकिन कई बरसों से इस इलाके में बिजली नहीं थी, तो मीडिया की वजह से और 18 चैनल की वजह से जो हमारी ये मांगे हर कोने कोने तक आवाज़ हमारी पहुँचाई गई है। आप मीडिया की वसादत से हमें जो बहुत बड़ा इंसाफ मिला है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है हमें आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने हमारी फरियाद सुनी और हुकूमत तक पहुंचाई और गवर्नमेंट ने हमारी जो है ये मांग पूरी की। मगर आपकी वसादत से जब आपने हमारी बात आगे पहुंचाई, इसलिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। त्राल के दूर दराज इलाके बरवाड़ में गुज्जर तबके से वाबस्ता अक्सर तलबा ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे थे। ताहम कम्युनिटी क्लासेस शुरू होने की वजह से अब ये तलबा काफ़ी खुश हैं। इलाके में मौजूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के अहाते में असातिज़ा इन गरीब बच्चों को समाजी दूरी और मास्क का इस्तेमाल करके इल्म के नूर से मुनव्वर कर रहे हैं। इस गुज्जर बस्ती में अक्सर लोगों के पास स्मार्टफोन ना होने की वजह से इनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे थे। क्लास भी देते हैं, इसमें भी बहुत फ़ायदा हुआ। हम सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखते हैं और मास्टर भी, टीचर्स भी हमें अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। हम ये अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ये कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और हमारे स्कूल भी ठीक तरह से खुल जाए। उनमें सबों की घर में ये
सुविधा मुहैया नहीं है कि वो फ़ोन का इस्तेमाल करें। कुछ बच्चे करते थे, लेकिन हमने सोचा कि इससे बेहतर है हम यहीं पे आ जाएंगे, तो उनको सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख के भी उनमें हम एज कम्युनिटी क्लासेस शुरू किए हैं यहाँ पे। तो उससे हमें ये पता चला कि उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें। बानिहाल सेक्टर में 4 लेन शाहराह की तामीराती कंपनियों और बकायादार ठेकेदारों के दरमियान रकूमात की अदायगी को लेकर चल रहे तनाज़ात की वजह से तामीराती काम तीसरे रोज़ भी ठप रहा। एहतजाज पर आमादा 2 दर्जन से ज़्यादा ठेकेदारों का इल्ज़ाम है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरी कंपनी आशापुरा के पास ठेकेदार के करीब 50 करोड़ रुपए की रकम बकाया है। HCC और CPPL की तरफ से रामबन बानिहाल सेक्टर में काम शुरू करने की कोशिश की वजह से रामसू में हंगामा आराई हुई। ठेकेदारों ने फ़ोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि वो बैंकों के कर्ज तले दबकर रामबन बानिहाल सेक्टर में 4 लेन शाहराह की तामीर का काम अंजाम दे रहे हैं। अब HCC काम कर चुके ठेकेदारों के करोड़ों रुपए की रकूमात वागुजार करने में टाल मटोल से काम ले रही है। हाल दिनों डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक ऑर्डर जारी किया। इसमें कहा गया है कि टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों को कोई टोल अदा नहीं करना होगा। इसके बावजूद चरसो अवंतीपुरा में मौजूद टोल प्लाजा से नज़दीकी इलाकों के लोगों से बराबर टोल वसूल किया जा रहा है। इस पर मुकामी आबादी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। ऑर्डर डिविजनल कमिश्नर साहब का कि आज से कोई पैसा वैसा जो 20 किलोमीटर के दायरे में आएगा उसको कोई पैसा वैसा नहीं देना है, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। ये तो तंग करते हैं, ऐसा बोलते हैं मीटिंग हो जाएगी बाद में पैसा वापस कर देंगे, पिछला तारीख देते हैं आज का तारीख नहीं देते हैं, पता नहीं इधर क्या हो रहा है। तो इस तरह हम लोगों को बहुत मसला हो। DC डोडा डॉक्टर सागर ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भदरवा में अपनी नौयत के पहले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। BMO भदरवा डॉक्टर हामिद जरगर ने बताया कि 70 लाख रुपए की लागत से तैयार करदा प्लांट से डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के शुमाली इलाकों के गरीब लोगों को फायदा पहुंचेगा। अस्पताल के अहाते में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए DC डोडा ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से लोगों की तिब्बी ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है। सप्लाई पेशेंट्स को लगता है, जो पेशेंट्स मतलब ये मैं कहूँगा कि अब सेकेंडरी और टर्शरी केयर जो हमारी होती है जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई, और मौजूदा भी हालात में आप जानते हैं कि कोविड में भी जो है वो इसका यूज़ है। नॉन कोविड भी केसेस कई सारी होती हैं जो सीरियस टाइप की नेचर के होते हैं, उनको भी सप्लाई देना पड़ता है, तो यहाँ वहाँ भागदौड़ हमें करनी पड़ती है। अब उसकी पुंछ के मेढर सब डिवीजन में गैस सिलेंडर फटने के वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक मेढर के छतराल गांव में एक चाय की दुकान पर गैस का चूल्हा जलाते ही अचानक सिलेंडर में आग लग गई और फिर सिलेंडर धमाके से फट पड़ा। इस वाक़े में 3 अफराद झुलस गए। तीनों को मेढर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां अब इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तीनों जख्मियों की शनाख्त शिराज अहमद, आबिद हुसैन और कलीम अहमद के तौर पर हुई है। बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की बरसी पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। बेगम अकबर जहां मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अहलिया थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पार्टी के दीगर लीडरों ने हजरत बल पहुंचकर मरहूमा के मज़ार पर गुलाह अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि बेगम जहां ने अपनी सियासी सरगर्मियों के अलावा कश्मीर की ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए भी नुमाया काम किया है। मारूफ शायर फाजिल कश्मीरी की 15वीं बरसी मनाई गई। मरहूम की कब्र पर फातिहा ख्वानी की गई और उनकी मग़फ़रत की दुआ की गई। कई मजहबी रहनुमाओं ने फाजिल कश्मीरी के मकान वाक़ फैसलाबाद श्रीनगर में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उर्दू और कश्मीरी अदब में नुमाया खिदमात पर 3 शख्सियात को फयाज़ तिलगामी, शहनाज रशीद और शाहिद बडगामी को फाजिल कश्मीरी अवार्ड से नवाजा गया। शहनाज और शाहिद बडगामी तकरीब में शिरकत न कर सके। शहनाज का अवार्ड रफ़ीक मसूदी ने हासिल किया, जबकि अबुल हसन फारूकी ने शाहिद बडगामी की जगह अवार्ड लिया। मौलाना शौकत हुसैन के हाथों ये अवार्ड दिए गए। किसान क्रेडिट कार्ड रखने वालों को हुकूमत की जानिब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए 50% सब्सिडी फराहम की जा रही है। डेयरी फार्म, मवेशी पालन, पोल्ट्री सेक्टर के किसानों को हुकूमत छोटी सनतें कायम करने के लिए सब्सिडी फराहम कर रही है। किसानों से इस स्कीम से इस्तेफादे की ख्वाहिश की गई है। सब्सिडी की बहुत 50% मिल रही है डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत, और पोल्ट्री पॉलिसी जो है बड़ी बड़ी मशीनों पर कोई 10-10 लाख रुपए का सब्सिडी भी मिल रहा है। जिला बारामूला के ब्लॉक सोपुर और डंगीविच में किसान पखवाड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। BDC चेयरपर्सन की मौजूदगी में जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने दोनों ब्लॉकों में प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम के दौरान किसानों को
केसीसी से मुतालिक जानकारी फराहम की गई। किसानों को केसीसी, पीएम किसान और सॉयल हेल्थ कार्ड्स की अहमियत से भी रूशनास कराया गया। डीसी किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने टीआरसी मुगल मैदान में किसान मेले का इफ्तिताह किया। महकमे ज़राअत और दीगर महकमों के इश्तराक से मुनक़िदा इस मेले में कई किसानों, मेवा काश्तकारों और दीगर लोगों ने शिरकत की। मेले में स्टॉल्स के जरिए लोगों को हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी दी गई। स्काउट्स जम्मू के वाइस चांसलर डॉक्टर JP शर्मा ने कृषि विज्ञान केंद्र कठुआ का दौरा किया। वीसी ने किसानों से मुलाकात की, उन्हें नई ज़रूरी तकनीक से वाकिफ करवाया। इन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ये सजेस्ट किया किसान भाई यहाँ आए हुए थे प्रगतिशील कि अब जो थोड़ा सा हमारा फोकस बदल रहा है और ये फोकस पहले बदलना चाहिए था। हमारा जो सेंटर रहा, फोकस रहा, प्रायोरिटी रही वो प्रोडक्शन पर रही, वो भी ज़रूरी थी। देश में हमें लोगों को खाना भी खिलाना है। हमारे देश में 15 से 20% अन्न वेस्ट होता है। फूल और फ्लावर्स और वेजिटेबल और फ्रूट्स की हम बात करें तो कई बार वो 50% भी वेस्ट होता है, 60% भी वेस्ट होता है। तो हमने ये सोचा है कि हमारा फोकस जो है प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पे होना चाहिए, जिससे कि जो वेस्टेज है 15 से 20% वो कम हो जाए। पूंछ में महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों में पॉलीग्रीन हाउस का सामान तकसीम किया गया। महकमे ज़राअत के ज़िला दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब में डीसी पूंछ मेहमान खुसूसी थे। ज़िला अफसरान मोहम्मद यूनुस चौधरी और चरणजीत सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। ये ट्राइबल सब्स प्लान के तहत जो हमने यहाँ से दिए हैं, तो ये हमारे मॉडल विलेजेस हैं, जैसे दरादुनिया और सलोत्री, ये जो हमारे पूंछ सब डिवीज़न में, और कालाबंद और गुरसाई का एरिया है वो इसमें थे। तो आज हमने डीसी साहब के हाथ में यहाँ पर 7 लोगों को जो है पाली ग्रीन हाउस, ये ट्राइबल सब प्लान के तहत जो यहाँ से थे। मेरे को गवर्नमेंट ने ये पाली हाउस दिया है, इसमें सब्जी लाने के लिए ये बड़ा आसान होगा, सब्जी कमा सकते हैं हम। डीसी बारामूला डॉक्टर जी नित्तू ने डाक बंगलों में एक मीटिंग मुनक़िद की। डीसी ने महकमे दही तरक्की के प्रोजेक्टों में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। मुतल्लिका हुक्काम ने डीसी को प्रोजेक्टों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। डॉक्टर नित्तू ने हुक्काम से कहा कि तमाम दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल में लाया जाए और देही इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ। इन्होंने SOPs पर अमल करने की भी हिदायत दी। बैरून रियासतों से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाले मजदूरों को यूटी के बाबुल दाखिला लखनपुर में कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ईंट के भट्ठों में काम करने वाले मजदूर लॉकडाउन के सबब अपने घरों को लौट गए थे। ताहम जब वो दोबारा अपने काम पर लौटने के लिए जम्मू कश्मीर आए हैं तो इन्हें लखनपुर में ही रोक दिया गया है। इनका कहना है कि वो भूखे प्यासे हैं और इंतजामिया इन्हें श्रीनगर नहीं जाने दे रही है। वहीं ईंट भट्टों के मालकिन का कहना है कि मजदूर न होने से कामकाज रुका पड़ा है। पे आए हैं यहाँ काम करने श्रीनगर, तो हमको मतलब यहाँ जाने को नहीं मिल रहा है इस टाइम। यहाँ 2 दिन हो गया है और खाना एक बार मिला सिर्फ 11 बजे रात को, इसलिए बच्चे उच्चे सब भूखे हैं, कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा है। मांग से ये करते हैं कि हमको जहाँ पर काम करने की व्यवस्था है वहाँ पर पहुँचाया जाए। अब यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन के कारण हम लोग घर गए थे, घर से फिर अभी सुने कि हम वहाँ ठीक है, माहौल ठीक है, तो हम लोग चल पड़े थे। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ आगे नहीं जाने दे रहे, बस हम लोग को सिर्फ जो जहाँ का है वहीं भेजे, जहाँ हम लोग चाहते हैं काम करने के लिए जा रहे हैं वहीं काम करने के लिए जाएं बस। गाड़ी नहीं मिल रहा, परसों के आए हुए इधर बहुत दिक्कत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे बारिश में पड़े रहे हैं सर, और इधर बीमारी हो गया, गर्मी में भी परेशान है। जो मोदी जी बोलते हैं लेबर के लिए हम वो करें ये कर रहे हैं, मगर लेबर यहाँ पड़ा हुआ है, उनको मार रहे हैं, ना कोई खाना दे रहा है ना कुछ हो रहा है। यहाँ मसला ये पहले उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, मतलब आपको परमिशन है जाओ लेबर लाओ, हमने लेबर लाए, वो यहाँ पड़े हुए हैं आपके सामने। अब देखें कितने बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, ऊपर से पुलिस आ रही है उनको पीट रही है। हमें बताएं कि हम क्या करें। हमने नया पैसा इनमें इन्वेस्ट किया है, लेबर को लाया है। अगर उन्होंने कहा कि उनको क्वारंटीन करना है भट्ठों में, तो हम खुद करेंगे, हेल्थ केयर करेंगे, इनका हर चीज़ संभालेंगे। ना हमें आगे जाने देते हैं ना हम पीछे, हम बहुत दिनों से यहाँ रुके हुए हैं। डॉक बंगलो कोहरा भलीसा में कोविड बेदारी और स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। नेहरू युवा केंद्र डोडा की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शर्मा को मास्क लगाने और समाजी दूरी का ख्याल रखने पर जोर दिया। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल का भी मशवरा दिया गया। इस दौरान स्पोर्ट्स किट्स भी तकसीम की गई। रिगार्डिंग जो है वो यूथ क्लब्स को अवेयरनेस दी जाए और कॉमन पीपल को भी अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि अक्सर देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में भी लोग फेस मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्पोर्ट्स किट्स दी जाती हैं, उसमें बैडमिंटन किट्स हों, वॉलीबॉल किट्स हों, कबड्डी किट्स हों, वो यूथ क्लब्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई।
बीजेपी के SC/ST मोर्चे के कारकुनों ने आज जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया। बांडीपुरा में बीजेपी लीडर वसीम बारी और उनके अरकान खाना के मिलिटेंटों के हाथों हलाकत के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। इन्होंने सियासी लीडरों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की। सरकार से जो डिमांड कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द, जिन लोगों ने जो कायराना हमला किया है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारी ये पुरजोर डिमांड है। और उसके साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों और पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हों, सबको उनकी सिक्योरिटी का अखनूर के निर्दोष चौक में बीजेपी लीडर जगदीश भगत की क़यादत में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने बांडीपुरा वाक़े की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत अमन में खलल डालने वाले मिलिटेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। राजौरी शहर में पीजी कॉलेज तक रोड खराब हालत में है। यहां से गुजरने वाले अफराद को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मुतल्लिका महकमे पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और कहा कि इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जब से हम पैदा हुए तब से हमने इस सड़क की यही हालत देखी है। हम आदमी भी इस पे आराम से नहीं चल सकता, और जब बारिश होती है, बारिश में तो बहुत ही बुरी हालत होती है। हम गाड़ियाँ तो चलने की दूर की बात है, इंसानों के चलने के काबिल नहीं है। यहाँ पे स्कूल हैं, स्कूल बसें हैं, कॉलेज है, हालांकि यहाँ तक के रोज़ एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं newsatv.com।